आपको कितना वेट डालना है, कम डालना है, ज़्यादा वेट डालना है, उस पर डालें। लेकिन प्रॉपर पहले अपने ट्राइसेप को वार्म अप आग निकल रही है ट्राइसेप में से। तो 4 सेट मैंने लगाए हैं, पहला ड्रॉप सेट किया है और उसके बाद मैंने उतना वेट डाला है, ना लाइटर है ना इतना हैवी है, जिसमें मुझे पता है कि मैं 12 से 15 रेपिटेशन ईजीली कर सकता हूँ। इसका अब हम एक ड्रॉप सेट मारने वाले हैं और इसको हम स्टार्ट करेंगे 39.7 kg से। तो 39.7 kg से स्टार्ट होगा और इसको हम फिनिश करने वाले हैं। हमारा लास्ट सेट होगा 19 kg, ठीक है। ये 19.3 पे हम इसको फिनिश करेंगे। एक एक प्लेट के अकॉर्डिंग हम कम करेंगे और 2 रेपिटेशन ज़्यादा करेंगे।
तो हम स्टार्ट अब कहाँ से करने वाले हैं? स्टार्ट हम करने वाले हैं 8 रेपिटेशन से। तो 8 से ऑनवर्ड एक एक प्लेट, सॉरी ना ना ना, तो एक एक प्लेट हम नीचे करना स्टार्ट कर देंगे और साथ में 2 रेपिटेशन उपजाई जाएंगे हर एक के साथ। We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it. We about to turn it on. 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 About to turn it on. Go, 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 go. We about to turn it on. Turn it on. About to turn it on. About to turn it on. Turn it. We about to turn it on. Turn it.
could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now. अभी आर्म्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी कार्डियो का मेरा मूड है, तो मैं 5 एक्सरसाइज ऐड करेंगे हम, 5 एक्सरसाइजेज और 20 रेप्स ईच एक्सरसाइज, और इनके दरमियान नो रेस्ट, कोई भी रेस्ट नहीं होगा इन 5 एक्सरसाइज के दरमियान। 20 रेप्स ईच एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज बॉडी वेट, और इसके लिए किसी भी टूल की इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। और मैं बस हमें 1 आधा मिनट जो है वो रेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद फिर चलते हैं और एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। The world has been broke down. The world is just announced. Final time is now. The final time to bow. But I will not get down. For you can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show you how to fight them. I could show you how to defeat them now. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do? This is just for us now. Yeah, I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. Yeah, I can only say that it feels right. That it feels right. Feels right. So right, so right, so right.
going with the gut. Never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging me, go and come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. It feels right. It feels right. हालात देख लें आप। क्या करें, लौंडे इसी तरह रहते हैं भाई। अच्छा जी, तो आज था मेरा 17वां दिन, 17th डे। 16 डेज हो गए, नहीं 15 डेज हुए यार। मैं रोज़ ये भूल जाता हूँ, मैं अपना पिछला ब्लॉग देखता हूँ तो मुझे दिन याद आता है कि कौन सा दिन है। खैर या तो 16वां है या 16 डे है या 15th डे है। कल 2 वीक हुए थे। अच्छा जो भी है वो आपको पता चल जाएगा। वो जो भी है ना, वो वाला दिन है आज। ये एग वाइट सब बनेंगी। ये 10 अंडे पूरे हैं तो इसी की एग वाइट्स हम बनाएंगे सबकी। चलें, एक होल एग चला गया। जब मेरे से एक आधा इस तरह टूट जाता है ना, तो मैं दिल को बहलाने के लिए कहता हूँ पूरा अंडा, एक पूरा अंडा मैंने डाल दिया। क्योंकि इसकी जो एग यॉक है ना, इसके अंदर जो यॉक है, ओमेगा 3 मिलता है इसके अंदर। जो हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं वो मिलते हैं, और उसके अलावा भरपूर मिनरल मिलते हैं जो इसके अंदर होते हैं। तो एक पूरा अंडा आप खा सकते हैं एनी डे एनी टाइम, एक पूरा अंडा। और बाकी आपको एग वाइट्स खानी चाहिए। अब ये आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, आप किस तरह की डाइट लेके जा रहे हैं। मैं तो 10 अंडे खाता हूँ, ठीक है, जिसमें से 9 मेरी कोशिश होती है कि मैं एग वाइट्स खाऊं, और एक पूरा अंडा मैं डाल लेता हूँ। तो मैंने जो है, मैं 2.5 साल पहले इधर आया था इंग्लैंड। तो जब मैं यहाँ आया हूँ, स्टार्टिंग के अंदर मैंने जॉब स्टार्ट की, और मैं जैसे हर बंदा यहाँ पे आता है और अपनी एक रूटीन में बिज़ी हो जाता है। मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी और मैं उसी के साथ जॉब करता था। तकरीबन 10 आवर्स में जॉब करता था। उसके बाद मैं आता था। स्टार्टिंग के अंदर वैसे तो मैं पीछे पाकिस्तान में भी करता था जिम, लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर जिम ज्वाइन नहीं की। तो बस बिज़ी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके आया था, बहुत सारी चीज़ें। फिर स्टार्टिंग में आपको पता है जो भी आता है अब्रॉड, वो आके एक बार तो पूरा ज़ोर अपना लगाता है। तो तकरीबन जॉब करते हुए मुझे 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बाद मैंने अचानक अपनी फ़िज़ीक देखी है। मैं गया था, मुझे आज भी याद है, मैं सिनेमा गया हूँ मूवी देखने,
और वहाँ पर मैंने पिक्चर्स निकाली अपनी। तो मैं घर आया हूँ, घर आके जब मैंने पिक्चर्स देखी, जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं काफ़ी मोटा हुआ था। मेरा मुंह बहुत मोटा हुआ था और मेरी पूरी बॉडी भी। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं ये था ही नहीं, मैं जिस कंडीशन में अभी जा रहा हूँ। और मुझे हेल्थ बैड अपनी इस तरह फील होने लग गई थी कि एक बार ऐसे हुआ है, मुझे 3 छुट्टियाँ इकट्ठी हुई हैं वीकेंड पे। एक बैंक हॉलीडे आया था, सैटरडे संडे मुझे ऑफ होता था, और मंडे बैंक हॉलीडे था। तो 3 दिन की छुट्टियां मिली हैं, और उन 3 दिनों के अंदर आप अंदाज़ा लगाएंगे मैं अपने बेड से उठा ही नहीं 3 दिन। तो मुझे फील हुआ जैसे ना मेरी बॉडी ही नहीं मुझे इजाज़त दे रही कि मैं उठूँ। मैं इतना टायर्ड था, डिजी हुआ था, बड़ी सॉगी सी मेरी बॉडी हुई थी, और बहुत बहुत बेडोल हो गया था। मतलब मैं लाइफ में कभी इस तरह की फिजिक में नहीं गया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ था, तकरीबन मैं 79 kg को टच कर लिया था, 80 किलो के करीब करीब मैं पहुंच चुका था। तो उस वक़्त मैंने अपने आप से एक अहद किया कि नहीं यार, मुझे जिम ज्वाइन करनी है। और वेरी नेक्स्ट डे मैं जिम गया हूँ, और जिम जाके मैंने ज्वाइन कर लिया। और बस उसके बाद चल सो चल, मैंने सबसे पहला जो डाइट प्लान अपना स्टार्ट किया, मैंने पहले 4 महीने विदाउट डाइट प्लान सेट मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। मैं अपनी फिज़ीक को एक साइमेट्री के अंदर लेके आया हूँ, जहाँ पे मुझे लगा है कि नहीं, मेरी फिज़ीक कम से कम एक जो है रेगुलर, जो मेरी पहले एक रेगुलर कंडीशन होती थी, उस कंडीशन पे आए, तो उसके बाद मैं प्रॉपर स्टार्ट करूँ अपनी डाइट भी। तो फिर मैंने वही किया। उसके बाद मैंने अपनी डाइट स्टार्ट कर दी। डाइट स्टार्ट करने से क्या हुआ जी, उस वक़्त की मैं अब आपके साथ यहाँ पे वीडियो भी शेयर करूँगा, जो मैंने उस वक़्त मेरी जो फिज़ीक थी, मैं बिल्कुल, मेरे एब्स क्लियर हो गए थे। लेकिन वो वाली कंडीशन के अंदर कार्ब लोडिंग तो नहीं मैंने की थी, लेकिन मैंने बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स जो एनर्जी होती है वो मैंने स्टॉप नहीं थी की। वो मैं अपना कार्बोहाइड्रेट्स लेके चल रहा था। तो वो पूरे का पूरा डाइट प्लान, मेरे पास 4 डाइट प्लान्स हैं जो मैंने अपने अपने ऊपर मैंने ट्राई किए हैं, और वो मैंने सारे के सारे अपने पास सेव रखे हुए हैं। तो वो कंडीशन लास्ट ईयर आई मेरी। उसके बाद फिर मैं दिस सीज़न फिर कोविड आ गया बीच में। कोविड आने की वजह से मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे सका हूँ। कोविड आने की वजह से फिर सारे जिम्स वगैरह बंद हो गए, वर्कआउट का मेरा फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। अब वो वर्कआउट का प्रॉब्लम स्टार्ट होने की वजह से क्या हुआ, फिर मैंने घर में थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज वगैरह बॉडी को मेंटेन करने की कोशिश करता रहा हूँ। उसके बीच में ऑब्वियसली जिम इज़ जिम, तो वो जिम वाला जो है एटमॉस्फेयर घर में कभी भी नहीं बना था। तो अभी इस सीज़न में मैं फिर दोबारा कार्ब्स भी मैंने लोडिंग एक्चुअली गाइस कभी भी कार्ब्स की मैंने लोडिंग की ही नहीं। हमेशा मैंने क्या कोशिश की है कि मैं कार्ब्स को इन बिटवीन रखूं और अपने प्रोटीन को हमेशा हाई रखूं, और मैं इसी कंडीशन के साथ हमेशा जाता रहूं। स्टार्टिंग के अंदर अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी आ रही है डाइट को लेके, एनी टाइम आप मुझे पूछ सकते हो डाइट के बारे में। आप मुझे मैसेज करें, और जितना नॉलेज मेरे पास है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, तकरीबन मुझे रेगुलर प्लस थोड़ा बहुत बीच में जो ब्रेक्स लगी हैं, तकरीबन मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए। तो उसके दौरान मैं अपने बहुत सारे सीनियर्स से टिप्स भी लिए हैं, और बड़ी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की है। और मेरा शुरू से ये मेरी आदत है कि मैं हमेशा लर्नर रहा हूँ। मुझे कभी भी बॉस बनने का शौक़ नहीं होगा। जब भी बॉस बनते हो ना आप, तो बॉस बनने से जो सबसे बड़ा हमें लॉस होता है ना, हमारी ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जहाँ पर हम बॉस बन जाते हैं। तो मैक्सिमम कोशिश आप यही करें कि हमेशा लर्नर रहें, गुड लर्नर। हर चीज़ से सीखने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको बॉस बनने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपके अंदर इतने गट्स हैं, आप अच्छे लर्नर हो, आप सीख अच्छा रहे हो ना, तो दुनिया आपको बॉस मान लेगी। ठीक है, तो आपको खुद बॉस बनने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा तब आता है जब लोग आपको बॉस समझे। डाइट को लेके किसी भी किस्म की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया होगा फैट बर्निंग प्रोसेस। उसके अंदर शुरू में पहले 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने और 3 महीनों के दरमियान क्या होता है, मिसाल के तौर पे अगर आप 80 kg है, 80 किलो के हो
आपका फौरी तौर पे पहले वीक, दूसरे वीक और तीसरे वीक में बहुत तेज़ी के साथ वेट रिड्यूस होता है, वेट गिरता है। तो उसके गिरने से आपको एक बहुत अच्छा इम्प्रेशन और किक मिलती है कि नहीं वाकई मैं बहुत ज़बरदस्त जा रहा हूँ। लेकिन कभी आपने नोट किया है कि अचानक क्या होता है, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने गुजरते हैं और उसके बाद आप एक चीज़ नोट करते हो कि यार मेरा थोड़ा सा वेट यहाँ पे अब रुक रहा है, इसके आगे अब और ज़्यादा कम नहीं हो रहा, फैट लॉस और ज़्यादा नहीं हो रहा। हालांकि आप उसी स्ट्रिक्ट डाइट पे हो और उसी वर्कआउट पे हो, लेकिन अभी आपको और ज़्यादा चेंजेस नहीं मिल रहे जो पहले 1-2 महीने के अंदर आपको मिल गए। उसकी क्या रीज़न है, ये क्वेश्चन मार्क है। और बहुत लोगों के, मेरे साथ खुद 2 से 3 बार ऐसे हुआ है कि मैं फैट बर्निंग प्रोसेस पे गया हूँ, लेकिन एक टाइम पे जाके मेरी ग्रोथ स्टॉप हो गई है। शुरू के अंदर जब भी आप ये करते हो, फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट करते हो, तो आप मिसाल के तौर पे 0 से स्टार्ट कर रहे हो। आप पहले जो नॉर्मली खाते पीते थे, आपने वो अपना खाना पीना थोड़ा सा रोका और आप नीट खाने की तरफ आए। नीट खाने की तरफ आने से क्या हुआ, आपको फौरी तौर पे जो आपकी लाइट वेट फैट थी वो फौरी तौर पे गिरी, और उसके गिरने की वजह से फौरी तौर पे आपको रिजल्ट दिखा। लाइट वेट फैट गिरने के बाद पीछे आती है स्टबन फैट, स्ट्रॉन्ग वाली फैट, जो बहुत सालों से हमारे लोअर बेली में और हमारी बाकी बॉडी के कई मसल्स के अंदर फिट हुई हुई है। अभी उसको गिराने के लिए आपको क्या करना है, अगर 2 महीने 3 महीने से आप वर्कआउट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिला है और अब आपको वो वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो यहाँ पर आप एक काम करें, यहाँ पर आप अपनी डाइट को थोड़ा सा और क्लीन करें और वहाँ से अपने वर्कआउट को थोड़ा सा एडवांस करें। जो एक्सरसाइजेज आप ऑलरेडी कर रहे हैं, या तो उसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी और एक्स्ट्रा ऐड करें, या उन एक्सरसाइज को हार्ड करें ताकि आपका बर्निंग और ज़्यादा हो। क्योंकि अभी जितना आप बर्निंग कर रहे हो, आपकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है उस बर्निंग को, और उस बर्निंग, वो जो आप बर्निंग कर रहे हो उसके अंदर जितना फैट उड़ना था बॉडी से, बॉडी उड़ा चुकी है। अभी आपको अपना वर्कआउट थोड़ा सा एडवांस करना है और दूसरी तरफ से अपनी डाइट को थोड़ा सा आपने क्लीन करना है फॉर गेटिंग मोर बेटर रिजल्ट्स। तो आपको रिजल्ट 100% मिलेंगे। आपको उसके अकॉर्डिंग वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, आपको किस कंडीशन की तरफ जाना है, अपना BMI मुझे सेंड करें और साथ में आप मुझे ये बताएं कि आप कहाँ को लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, आप अपनी फिजिक किस तरह की चाह रहे हो, इस टाइम आपका प्लान क्या है। तो मेरे साथ अपना प्लान शेयर करो आप, मैं आपको उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन मैंने पिछले 3.5-4 साल के अंदर कलेक्ट की है, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं उसके हिसाब से जो भी आपकी हेल्प कर सका 100% मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर आप तंदुरुस्त हो तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। एक दिन हम में से किसी को बुखार भी हो जाता है ना, तो हमारे घर में चाहे फैमिली गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टी है या कुछ भी है, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तंदुरुस्ती का होना सबसे ज़रूरी है। तो ये बॉडी बिल्डिंग को चूज़ कर लो या आप हेल्दी लाइफ को चूज़ कर लो, मैं समझता हूँ एक ही बात है। क्योंकि आपका अल्लाह ताला ने सिस्टम ही इस तरह का बनाया हुआ है कि आपको एवरी डे वार्म अप करना है, अपनी बॉडी को काम देना है। अगर आप अपनी बॉडी को काम देना छोड़ दोगे और आप अपनी बॉडी को खिलाते रहोगे तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहेंगी। तो इसका सबसे आसान हल यही है गाइस कि आप रनिंग कर लें, आप साइकिलिंग कर लें, आप वॉक कर लें, आप मॉर्निंग वॉक कर लें, इवनिंग वॉक कर लें, काम से फ्री हुए हैं रात को बाहर निकल जाएं और ऐसे ही 3-4 चक्कर लगा लें अपने। फैट भी इतनी बुरी नहीं है गाइस, फैट से भी ज़्यादा बुरी एक चीज़ है, वो है लेजीनेस। लेजीनेस को अपने अंदर आपने नहीं आने देना। आप सारा दिन अगर बेड पे गुजार रहे हो, या सारा दिन आप घर से नहीं निकल रहे हो, या आप सिर्फ सारा दिन दोस्तों में गुजार रहे हो और उसके अलावा आपकी रूटीन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है गाइस, सबसे ज्यादती आप अपनी बॉडी के साथ कर रहे हो। अगर आप इस तरह कर रहे हो तो अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर लेके आएँ। और जब आप किसी एक फील्ड के अंदर एक्टिव होते हैं तो आपको एक्टिव होने का मीनिंग पता चल जाता है कि यार इसका मीनिंग क्या है। कल इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग में मिलूंगा और कल का टॉपिक है हमारा कि हमारी बॉडी एनर्जी को किस तरह स्टोर करती है, हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, कहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो किस तरह स्टोर होती है, फैट बॉडी के अंदर बनने का और स्टोर होने का प्रोसेस क्या है, रीजंस क्या है और इससे हम रिड ऑफ कैसे कर सकते हैं। जो मेरा 30 डेज का लास्ट वीक है वो बहुत ही ब्रूटल जाने वाला है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाने वाला है और बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि मुझे जो अभी कंडीशनिंग मिल रही है, मैं लास्ट वीक जो अपना देख रहा हूँ, मैं लास्ट वीक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ। तो गाइज अपना बहुत ख्याल रखें,
मिलते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।